हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉसिको। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारी कंट्री में वी हैव द राइट्स for the minorities also, and on the other hand we have right to education for the children between 6 to 14 also. Now question here is that कि whether minority institution में whether there is a applicability of the provision of right to education act or not. So Supreme Court has recently questioned the case of Paramati Educational Trust 2014 case that said कि minority schools are exempted from the provision of RTA Act. Now Supreme Court have observed that कि noting it may undermine the child's right to quality education. अगर ये provision fulfill नहीं होते minority institution में, so it can affect or undermine the children's right to quality education. और इस मैटर को एक फर्दर लार्जर बेंच के पास में इस मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द केस। ये प्रेजेंट केस जो था इसका नाम है अंजुमन इशत ए तालीम ट्रस्ट विद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। So under this case, Supreme Court have observed and referred the matter to the larger bench. So they questioned the Paramati Educational Trust 2014 ruling that exempted minority institutions, minority schools from the provision of RTE Act. Now concern that the raised by Supreme Court is that it can undermine the quality of education of the children. So therefore this is referred to the लार्जर बेंच। नाउ यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन जो आए ये आए थे टीईटी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। सो अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है सो देयर इज अ क्वालिफाइंग टेस्ट दैट इज कॉल्ड टीईटी, दैट इज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो क्वेश्चन ये था कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के टीचर्स जो है उनको भी टीईटी का क्वालिफिकेशन लगेगा या नहीं। सो आंसर यहाँ पर ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैटर, बिकॉज टीईटी का जो प्रोविजन है दैट इज गिवन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। सो दे सेड कि टीचर विथ 5 years सर्विस लेफ्ट may continue without TET and must pass for the promotion. But the teacher who have service more than 5 years, they must clear TET within 2 years. Otherwise, they will not be eligible to teach in the minority educational schools or institutions. Now, bench view the verdict appear to be legally suspect, questionable and disproportionate. जो परामती रूलिंग था उसको लेकर यहाँ पे इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेड कि दिस इज लीगली सस्पेक्ट, क्वेश्चनेबल एंड डिस्प्रपोर्शनेट। So the reason behind is that कि RT Act जो है RT Act was struck down for minority schools. So RT Act के अंदर ये provision है under section 12(1)(c) that 25% seats in the minority institutions will be reserved for the weaker or the disadvantaged group. Now here the conflict come from Article 30 Clause 1 that says कि minority groups have the right to establish as well as administer their administer their educational institutions. On the other hand, we have Article 21A that gives right to education to the children between 6 to 14 years. Now the exemption was created because minority schools जो at the end of the day schools ही है, but in the Paramati case the exemption was created and the exemption was that कि जो minority schools है उन पर आर्टिकल 21A स्पेसिफिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो कि आर्टिकल 21A को फुलफिल करने के लिए आर पार्लियामेंट हैव पास राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इस एक्ट के प्रोविजन में केवल सीट रिजर्वेशन करने की बात नहीं करी, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले बच्चों को, इसको लेकर भी प्रोविजन है और उसी को लेकर टीईटी का भी प्रोविजन था कि स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन टीईटी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ही। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A और 30 क्लॉज 1, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की हुई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे एडमिनिस्टर होंगे, तो ये कहीं ना कहीं दोनों प्रोविजन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं एक दूसरे के। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। आर्टिकल 21A इट केम बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। उसके बाद में 93rd अमेंडमेंट आता है दैट प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन
for the backward classes, that is in Article 15 clause 5. Now court's holding is that the court upholded both 86th amendment and the 93rd amendment that provides the reservation, ठीक है, that provides the reservation from the weaker and the disadvantaged group in the प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, क्योंकि इंटरेस्टिंगली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन है। अब इसके लिए ऑब्वियसली बच्चे आएंगे तो उनका फीस बच्चों को नहीं भर के यहाँ पर गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो आरटी एक्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर माइनॉरिटी स्कूल्स एडेड एंड अनएडेड अंडर आर्टिकल 31। सो इसकी एप्लीकेबिलिटी पे सवाल उठाया गया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है as such it is constitutional, but when it come to the minority schools that are established and administered under article 30 clause 1, उनके लिए it will be unconstitutional, मतलब वहां पे आरटीआई एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये इसके पीछे रीजनिंग ये था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है दैट हैव देयर यूनिक कैरेक्टर एंड दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, और अगर इसमें 25% रिजर्वेशन ला दिया फॉर द वीकर एंड द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, तो इससे कहीं ना कहीं जो नेचर है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का वो अफेक्ट होगा। ओके, सो फोर्सिंग देम टू admit 25% student under section 12(1)(c) of RT Act abrogate their fundamental rights under article 30 clause 1, and such an obligation could destroy the minority character of this school. Now, but interestingly, what this RTA Act says, RTA Act that came in 2009 for implementing right to education provision, that is article 21A. Now the obligation on the schools is that अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पे फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा टू ऑल द इनरोल्ड चिल्ड्रन। सेकंड, अगर एडेड स्कूल है तो जितने प्रपोर्शन में स्टेट एड दे रहा है इन स्कूल को, उतने प्रपोर्शन में सीट्स रिजर्व करनी पड़ेगी फॉर द वीकर एंड द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। और अगर प्राइवेट अनएडेड स्कूल है तो वहां पे 25% सीट रिजर्व्ड होगी फॉर द डिसएडवांटेज्ड और स्टेट विल रीइंबर्स इट। नाउ अदर प्रोविजन जो आरटी एक्ट में है, ये केवल रिजर्वेशन की बात नहीं करते 25% रिजर्वेशन की, उसके साथ मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, रिलेटेड प्यूपल टीचर रेशियो, related infrastructure, related libraries. It also imposes the ban on corporal punishment or the capitation fees, and also focus on child centric and non-institution centric things. Now यहाँ पर सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसके लिए अदर प्रोविजन भी है। अब परामती केस जो है, परामती केस में एग्जाम्पशन दिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पिछली स्लाइड में हमने ये देखा, ये आर्ग्यूमेंट है कि इनका नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम माइनॉरिटी स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है, अब तक 8.76% ही डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स है और मेजॉरिटी वर नॉन माइनॉरिटी। इंटरेस्टिंगली सो कॉल्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 64% जो स्टूडेंट्स है दोस आर नॉन माइनॉरिटी। मीन्स वी कैन सी जस्ट फॉर द टेकिंग द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स ने यहाँ पर अपने आप को सिर्फ टैग करके रखा है, बट एज सच वो उनकी कम्युनिटी के लिए भी कुछ ऐसा वर्क कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि इस सुप्रीम कोर्ट केस में भी अगर हम देखें तो ऑब्जर्व हुआ है। Now the critics, so this particular ruling of 2025, it says the restoration of child right and it says कि apply the RTI norms, और therefore परामती जो केस है इसको एक लार्जर बेंच के पास में यहाँ पे रेफर करने के ऑर्डर मिला हुआ है। Now we'll move to our next topic, that is regarding the reservation cap. So we all know कि मुंबई में पिछले हफ्ते मराठा कम्युनिटी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करे फॉर व्हाट, फॉर द रिजर्वेशन। So they want their inclusion in the OBC and that was also promised by the government. अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो रिजर्वेशन है हर कोई डिमांड कर रहा है, पीरियोडिकली अलग अलग स्टेट अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से हमको देखने को मिलता है। तो क्या रिजर्वेशन ये इसी तरीके से मिलते रहेगा? क्या रिजर्वेशन पे कोई कैप या कोई लिमिट होनी चाहिए? कहीं तो कुछ फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो इसी टॉपिक को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, so can affirmative action, reservation is basically affirmative action, can
इस पे देयर कैन बी अ सीलिंग ऑफ द 50%, बिकॉज इंदिरा साहनी की इसमें 50% सीलिंग की बात कही हुई थी कि 50% से ज्यादा सीलिंग नहीं हो सकता है। एमआर बालाजी केस भी जो इससे पहले हुआ है, उसी में इसी चीज को बताया हुआ है। अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू इक्वालिटी की बात करी हुई है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको हमको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, उनको स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ेंगे। तो वुमेन, चिल्ड्रन, एसटी, एससी और जो बैकवर्ड क्लासेस है इनके लिए आर्टिकल 15 और 16 में जो है स्पेशल प्रोविजंस की बात करी हुई है। एंड अंडर दैट स्पेशल प्रोविजन वी हैव प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इन द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। ओके, नाउ इंटरेस्ट यहाँ पे द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मैनी और टाइम्स वी हैव सीन कि दिस 50% कैप इज ब्रीच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिंग ऑफ रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं, उसके साथ में हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी की भी बात करते हैं। सब्सटेंटिव इक्वालिटी मतलब क्या? जिसमें हम डिसएडवांटेज ग्रुप को जो है उन्हें भी इक्विटेबल एक्सेस दे। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्लास है जिसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वुमेन, बहुत लंबे टाइम तक हमारी सोसाइटी में उनको एजुकेशन से दूर रखा गया। आज भी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली वुमेन जो है उनका एजुकेशन प्रमोट होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड, दे फेस सो मेनी ऑफ चैलेंजेस, तो ऑब्वियसली इनके लिए कुछ बेटर अफर्मेटिव एक्शन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर फॉर्म दिस इज द फॉर्मल इक्वालिटी, बट सब्सटेंटिव इक्वालिटी तब अचीव होगी मीन्स रियल सेंस में जब हम डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, उनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे। अभी लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तब आता है तब रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा एक्सीड होता है, बिकॉज रिजर्वेशन या ये दिस इज वन टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, इट इज अ एक्सेप्शन। बट अगर एक्सेप्शन 50% से ज्यादा होगा तो क्या वो चलेगा? और यही सवाल जो है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया था इन ईयर 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली सेड कि रिजर्वेशन शुड बी कैप टू 50%, और उसके साथ साथ ओबीसी रिजर्वेशन जो है इसमें क्रीमी लेयर भी होना चाहिए कि अगर ओबीसी कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा अगर एनुअल इनकम होती है फैमिली की, तो आपको ओबीसी के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर, ऊपर की जो क्रीम होता है, जैसे मिल्क में क्रीम होता है, वैसे ओबीसी कम्युनिटी में जो ऊपर की पॉपुलेशन है हु आर वेल, हु आर अर्निंग वेल, या उनका सिचुएशन काफी अच्छा है इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, उन्हें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब 2021 में क्या होता है कि महाराष्ट्र में मराठास को कोटा यहाँ पर दिया जाता है, दैट एक्चुअली जो मराठास को रिजर्वेशन दिया जाता है जो कि 50% सीलिंग को यहाँ पर ब्रीच कर देता है। अब ये पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन दिया गया मराठास को, दैट वाज चैलेंज्ड। अब नाउ इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये दिया कि इंदिरा साहनी केस में स्पेसिफिकली लेट डाउन किया हुआ है कि 50% कैप जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रीच हो गई है। Therefore, now this time Marathas were not asking a separate quota, they were asking the reservation under OBC। लेकिन इसके अलावा एक और रिसेंट केस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट रिगार्डिंग आर्टिकल 15(6) एंड 16(6), ठीक है, 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6, दैट गिवन द रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, बाय 103rd constitutional amendment. Now it provided 10% reservation quota to EWS, economical weaker section, जो कि ST SC OBC में बिलोंग नहीं करते हैं। अब नाउ द 10% कोटा इज गिवन टू द EWS, मतलब ऑलरेडी अगर हम देखें तो 50% कोटा था, उस पर और 10% आके ये 60% कोटा हो गया। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन जो दिया गया ये भी चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में in the case of जनहित अभियान versus Union of India 2022 case. Now Supreme Court has hinted that cap is not absolute but reasonable limit should be there. ठीक है, जहां पर जितना प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से हम फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम जर्नी देखें तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आता है, जिससे आर्टिकल 15(1) जो है इसमें इक्वालिटी क्लॉज जो है इसके साथ में रिजर्वेशन की बात होती है। 62 में जो बालाजी केस होता है यहाँ पर एक्सेसिव रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसकी बात की गई है। 1973 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस जो है दैट अफर्म द रिजर्वेशन एज अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी। 92 में इंदिरा साहनी केस दैट सेट 50% कैप,
एंड क्रीमी प्रिंसिपल फॉर ओबीसी। 2005 में 93rd अमेंडमेंट आता है दैट रिजर्व द सीट्स in the private institution for the backward classes except minorities, and 2019 में we had 10% EWS कोटा। नाउ इंटरेस्टिंगली अक्रॉस स्टेट्स अगर हम देखें तो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, महाराष्ट्र में जो है मराठास धनगर्स जो है वो सेपरेट रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, अभी तक डिमांड चल रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो एस को 50%, एस को 77.5% और ओबीसी को 27%, इट कॉन्स्टिट्यूट 49.5%, और अब ईडब्ल्यूएस का बढ़ा के ये 59.5% हो चुका है, और स्टिल जो है डिमांड रिजर्वेशन की चली रही है। अब यहाँ पर एक और डिमांड ये आती है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जिससे हमें एक्चुअली नंबर तो पता चले कि ओबीसी एससी एसटी जो है इनका टोटल पॉपुलेशन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल इनका पॉपुलेशन 50% से कम है तो इतना रिजर्वेशन क्यों है। अगर इनका पॉपुलेशन जो है 90% है, 80% है, देन ये जो रिजर्वेशन दिया है क्या ये वैलिड होगा या इससे ज्यादा देना पड़ेगा, तो तब एक नया अपने आप में डिस्कशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जो क्रीमिलियर है, क्रीमिलियर जैसी ही बात यहाँ पर करी हुई है ओबीसी क्रीमिलियर ओबीसी में जो है वैसी ही बात करी हुई है एसटी और एससी के लिए भी। एक इंपॉर्टेंट कमीशन और एक इंपॉर्टेंट केस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओबीसी जो है, ओबीसी में अगर देखें तो 97% जो रिजर्वेशन बेनिफिट है ये अराउंड 25% सबकास्ट को ही मिल रहा है। ये 25% सबकास्ट वो है जो कि डोमिनेंट है, जो कि वेल ऑफ है। तो 97% जो सीट्स रिजर्व्ड है उन पर 25% डोमिनेंट सबकास्ट जो है केवल यही ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कमीशन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करा था, रोहिणी कमीशन। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी एंड दे सेड कि जरूरी है कि ओबीसी जो है उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन मतलब क्या, जो कि मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी कास्ट है उनको ज्यादा यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या तो उनकी एक सेपरेट कैटेगरी बननी चाहिए। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग केस हम अगर देखें तो वो ये आया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, जो कि ये कहता है कि स्टेट्स के पास में ये पावर है कि वो एसटी और एससी इसमें सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये बेसिक हमारे पास में कुछ डेवलपमेंट्स है। इसके लिए जरूरी है कि कास्ट सेंसस हो, एनएसएस सर्वे आए, जिससे जो रोहिणी कमीशन है या देवेंद्र सिंह को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेटा चाहिए ये सारी चीजें सामने आए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।